Guys, last year CET paper I got 90 percentile using G strategy. Now obviously I'm not proud of this score. 90 percentile पे कुछ नहीं आएगा, but यार I'm able to beat 1 lakh out of 1 lakh people. I'm able to beat 90,000 students without touching a single question, and this is where G strategy come into picture. Now CET, because there is no negative marking, obviously I can solve the complete paper. Yeah, I cannot solve the complete paper because question छूटने वाला है. There are 200 questions in the CET paper. Average student, if I talk about the G study, मतलब गरीब student, गरीब मतलब जिसको नहीं आता solve करने को, he can do around 150 question. So you can do 150 question. Last 50 question you cannot solve. So those 50 question I can use G strategy. See, now there are 4 section, quant, verbal, logic अलग अलग है. Earlier the paper used to be jumbled up, quant, verbal, logic सब एक साथ, ठीक है. तो coming to the point, I had students who had used to come and tell me, सर इस बार क्वांट तो आया ही नहीं. अरे भाई क्वांट था, तो वहाँ तक गया ही नहीं, क्वांट लास्ट में था. या सो कमिंग टू द पॉइंट कि पेपर छूटने वाला है. सो दोज क्वेश्चन जो छूटने वाले हैं, कैन आई यूज जी स्ट्रेटजी? यस. Puzzles, the most difficult area for puzzles. I'm still working on the G strategy for puzzles. I'm not able to find it. I have got a few tricks. For example, I have only one method to solve every puzzle. Every puzzle, right from circular arrangement to linear arrangement to everything, only one method. बस मुझे साला अलग अलग ट्रिक सीखना ही नहीं है, एक ही मेथड आता है मेरे को करने को, एंड दैट इंक्रीज माई स्पीड. बट फ्रॉम द जी स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ, विदाउट टचिंग पेन, फॉर ब्लड रिलेशनशिप एंड फॉर मैट्रिक्स, yeah, I have made that shortcut. So I have that shortcut with me which can rock. Yeah, coming to the point, I'll give you a simple example today of data sufficiency. Now data sufficiency is going to be 10 marks in the CET paper, 10 marks. And those who are given the CET paper, please ask them. Data sufficiency was सबसे घटिया topic. Why? Because lengthy. Last year CET, this year CET, we had one 5 question of logic based data sufficiency. उसमें से 4 question were based on puzzles. One was circular arrangement. Circular arrangement statement number 1, circular arrangement statement number, दोनों को यूज करके आंसर निकालो. सारा 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में. Now, open up your book of data sufficiency. Don't look at the question, look at the solution. Most common answer is either both या none. अब चेक करके देख लो. Most common answer is either both या none. So now if I go for the exam, I will obviously try to solve. यार, I'm here to solve the exams. मैं चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से पेपर सॉल्व करना चाहता हूँ, बट तुम मुझे नहीं सॉल्व करने दे रहे, टाइम ही नहीं दे रहे हो, या पेपर बहुत टफ डाले, तो मैं क्या करूँ? व्हाट आई डू? आई यूज जी स्ट्रेटजी. ठीक है, जी स्ट्रेटजी लगाओ. अगर पेपर वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए तो जी लगाओ. ना माई प्रॉब्लम इज, एज अ टीचर आई कैन नॉट गिव यू ऑल द ट्रिक्स नाउ. Visual reasoning, look at the visual reasoning of last year CET, very tough, super hard level. मैं भी क्या करेगा यार, आधा घंटा लग रहा था सॉल्व करने पे 25 क्वेश्चन. माई टाइम फॉर यू इज 15 मिनट फॉर विजुअल एंड पीपल आर टेकिंग 30 मिनट्स. ठीक है, आधा घंटा तो उसमें डालेगा, तो बाकी जगह क्या करेगा? सो व्हाट आई यूज? जी स्ट्रेटजी. ट्रस्ट मी गाइस, 99.99 percentiler also are using जी स्ट्रेटजी. ऑब्वियसली द टॉपर यार, ही डोंट नीड टू यूज जी स्ट्रेटजी, बट वो भी कितना कर लेगा यार. उसका अभी विधान सर का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो विधान ने बोला कि मेरा अटेम्प्ट वॉज 160 to 170 was usually the ideal attempt. Accuracy was high, तो obviously scored more marks, but remaining 30-40 क्वेश्चन वो क्या करे? छोड़ना क्यों यार? 30 क्वेश्चन आम आदमी का छूटने वाला, यू अंडरस्टैंड दैट? सपोज 50 क्वेश्चन छूटने वाला, 150 अटेम्प्ट, 50 क्वेश्चन छूटने वाला है. 2000 रुपये का CET, 1200 रुपये का CET का फॉर्म, डिवाइड बाय 50, 60 रुपये का क्वेश्चन, कितना बड़ा यार. डिवाइड बाय 1000 रुपये का फॉर्म, डिवाइड बाय 50, 220 रुपये का क्वेश्चन, कितना? 20 रुपये क्वेश्चन ना. तो मैं छोड़ूं क्यों यार? ठीक है, 1000 रुपये बटा 50, 20 रुपये का क्वेश्चन, मैं 20 रुपये पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हारा छोटेगा 20-20 रुपये का लॉस, अब वो सोचो. ठीक है, तुक्का मारना है. अभी तुक्का क्या मारने का? पब्लिक में वो कहते हैं सर आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, क्या मारूं, मार्क करूं, ए मार्क करूं, बी मार्क करूं, कैसे पता लगेगा यार? हाउ आई डोंट नो द पेपर ना. CET का पेपर सुना आता है बार, आंसर की सुना आती है बार कि टू टेल की क्या आने वाला है. सो माई आंसर इज वेरी सिंपल. तुम्हारा नाम क्या है? सर अमनप्रीत. अमन तो ए मार्क कर दे. तेरा नाम क्या? चंदन, तो सी मार्क कर दे. और मैं क्या बोलूँगा यार? बट रादर देन डूइंग ऑल दिस, तुक्के मारने की जगह वी आर यूजिंग जी स्ट्रेटजी. सो टेस्ट, एनमैट, CET, all these things G strategy rocks. But my problem is I cannot give you G strategy in December or in October or in March. Why? Because of the fact कि I want you to build the base. 90 percentile में कुछ नहीं मिलने वाला यार. PGDM में चलो 6 लाख की, 7 लाख की नौकरी, 8 लाख तक की नौकरी मिल जाएगी. Our target is 99 percentile. तो अपन इज्जत दिखाओ. जनवरी में आके, दिसंबर में जाके, when CAT is over, everything is over, when we have a pure focus on CET,
I start introducing you to G strategy. So those joining us now, I'm giving you the G strategy topic wise. For example, I took series का topic last week, I gave you G strategy for that. जो topic आता जाएगा मैं उसका G strategy आपको देता जाऊंगा. But bulk में all the G strategy together I'm going to introduce in Jan. Yeah. So either if you can join us, great. Otherwise, what you can do, आप अपनी list बनाओ. The common type of question एक notebook में डालते दा. Call it your strategy. आपका नाम अगर गुरप्रीत है तो गुरप्रीत स्ट्रैटेजी, जी स्ट्रैटेजी फ्रॉम गुरप्रीत. आपका नाम अगर मोहित है तो एम स्ट्रैटेजी. अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और यू कैन जॉइन अस फॉर द प्रोग्राम. या दैट विल कवर अप द कंप्लीट थिंग. माय टारगेट इज 99 परसेंटाइल बट योर बैकअप प्लान इज 90 परसेंटाइल विच इज नॉट अ बैड स्कोर यार. या सो दैट्स व्हाट जी स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. सो आप अपनी लिस्ट बनाओ. मुझे आपको मैं 90 परसेंटाइल तक मैं लेके जाने का आई कैन टेल यू कि यस, यूजिंग जी स्ट्रैटेजी विदाउट टचिंग अ सिंगल क्वेश्चन, only by playing on the options we can get up to easily 90 percentile. ठीक है. नकल के लिए थोड़ी अकल की जरूरत होती है, नो डाउट. सो जी स्ट्रैटेजी इज बेसिकली थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा हार्ड वर्क, या विच कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू बिल्ड इट. यप. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा लास्ट ईयर हमारा पार्टी हुआ था. सो एवरी ईयर आई टेक माई स्टूडेंट टू अ पार्टी. तो द प्लान वॉज टू बिल्ड अ टावर as high as you can using straws. So I gave a straw का पैक to every team. You have to build a tower कि किसका ऊपर जाता है. एक टीम ने क्या किया, दे पुट द लास्ट स्ट्रॉ इनटू अ क्रैक इन द वॉल. ऊपर छत में कोई वो था, कोना था, उसमें घुसा दिया एंड दे बिल्ड उल्टा टू द बॉटम. तो मैं बोला यार ये तो इलीगल है. सर आपने किधर बोला इलीगल है? जी स्ट्रैटेजी. हाईएस्ट टावर चाहिए था. तुम्हें किसी ने बोला कि सपोर्ट लो या ना लो, स्ट्रॉ चाहिए थी, हमने स्ट्रॉ लिया, ऊपर टच करवा दिया, काम अपना आसान हो गया. या स्ट्रॉ का पिरामिड यू कांट बिल्ड अदरवाइज या दैट हाई. Alright, coming to the point, G strategy is smart work. Yeah, I want to take care of both. If you're joining us now, I want to take care of your basics, your shortcuts and your G strategy together. Otherwise, December में आके, जनवरी में आके we'll talk about only G strategy. Yeah, तो आप खुद से कर रहे हो, very good, करते रहो. G strategy के लिए आना होगा तो बाद में हमारे पास आ जाना. So you can go for the books, mocks, shortcut, whichever program you want to join. You can join us at CET King. Alright. Right now, I think we are looking at the highest, we are the biggest coaching classes, I think, because I don't know, I don't have the confirmed number from the other classes, but I feel with last year, we had around 16,000 students joining us for the CET program. Yeah, for CAT, for books, sorry, for books, for mocks, for whichever program they've joined, 16,000. So last 3 years, I'm giving the CET exam using G strategy only. Yeah, first year, I got 86 percentile. सेकेंड ईयर आई गॉट 96 परसेंटाइल. वो लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर बहुत टफ आ गया था तो बाकी लोग का स्कोर कम हो गया तो मेरा स्कोर ऊपर आ गया. इस बार आई गॉट 90 परसेंटाइल. ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, बट गरीब की बात कर रहे हैं, मैं अमीर की बात नहीं. तो लेके ना यार 99.9 किसने तेरे को मना किया है? बट जो गरीब बच्चे हैं उनको काम आएगा. अमीर बच्चों में द टॉपिक विच यू प्लानिंग टू लीव, आई कैन यूज जी स्ट्रेटजी. पजल्स हो गया, जहाँ जहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है, वी कैन यूज जी स्ट्रेटजी. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.